Chapter number 1 of Edexcel IGCSE Biology, Characteristics of Living Organisms. Now we have in total of how many characteristics? 7 to 8 characteristics that are included in your syllabus of Edexcel IGCSE Biology, which make the organisms living organisms. Non-living organisms भी होते हैं, but they are the ones that don't have those several characteristics that these living organisms actually have. For example, movement, respiration, sensitivity, growth, metabolism, respiration, irritability, excretion, and reproduction. ये characteristics को हम ये भी कह सकते हैं that these are some attributes जो कि कुछ living organisms के होते हैं. These are the some attributes that are for the living organisms. जैसे वो excrete भी करते हैं, they have a characteristic that they can reproduce as well. They can move, locomotion, nutrition है, खा पी सकते हैं. They can grow. Once they intake nutrition, they have a property of growing as well. Metabolism भी है, उससे energy generate कर सकते हैं. And the energy generated can be used in respiration as well for your muscles to work. All these characteristics are the ones that actually make those living organisms living. That is why they live, they perform certain functions, they survive according to these 7 to 8 basic characteristics. Talking about the first one, movement है, which is an action by an organism or part of an organism causing a change of position or place. For example, movement को हम locomotion भी कहते हैं, where a plant or an animal can change its place. उसके पास एक characteristic है कि वो अपनी जगह change कर सकते हैं. For example, the plant shoot is moving in a specific direction. जैसे sunflowers होते हैं, वो sun की तरफ move करते हैं. ठीक है, या birds हैं, birds भी अपनी किसी भी direction में जा सकते हैं. Animals हो, plants हो, they have a property of movement. They can change their position or their place as well. Next, we have the second characteristic, which is respiration. It is the chemical reactions in the cells that basically break down the nutrient molecule and release energy for metabolism. जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6, ये ब्रेक डाउन होगा तो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, और साथ में एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड एज वेल. अब ये जो एनर्जी बेसिकली प्रोड्यूस होती है, ये एनर्जी लेने के लिए हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन. हमें एनर्जी चाहिए, इसीलिए तो ये रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है. ना हमें इधर एथेनॉल चाहिए, नॉर आई नीड दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो वेस्ट है. ग्लूकोज एक्चुअली गेव मी दिस एनर्जी. अब ये एनर्जी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन यूज इन देयर मूवमेंट, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, इवन मसल्स टू वर्क. आपके मसल्स में जो ये मायोग्लोबिन, ऑल ऑफ द एनर्जी is required in the muscles basically. So sensitivity is a third characteristic of a living organism, which is the ability to detect or sense a stimuli in the internal environment. अब ये जो cactus था, यही cactus, ये जो plant का एक shoot है, let's say sunflower shoot है, ये move क्यों हुआ था? इसके अंदर ये first characteristic movement क्यों आई थी? Because इसके अंदर ये third characteristic sensitivity की भी थी कि ये इसको एक external stimulus मिलेगा जो कि है सूरज. स्टिमुलस क्या है? सूरज राइट पे जा रहा है. स्टिमुलस क्या है? सूरज और राइट पे जा रहा है. उसी के साथ साथ द प्लांट शूट आल्सो सेंसेस द लाइट एंड रिस्पॉन्ड्स बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट. और उस तरह से ये अपने अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस करता है. ग्रोथ क्या है? इट इज अ परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड अ ड्राई मैस बाय एन इंक्रीज इन द सेल नंबर और सेल साइज और बोथ. ग्रोथ क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स बॉडी में इंक्रीज होना, आपका साइज रिलेटिवली बढ़ना, आपकी हाइट बढ़ना, आपका वेट बढ़ना, आपका मास बढ़ जाना. आपका ड्राई मास जो है, वेट एक होता है, मास एक होता है ड्राई मास. ड्राई मास क्या है? बोन्स. ये नहीं कि बंदा खा पी के फैट हो रहा है, उसके अंदर फैट्स आ रही हैं, मोटा हो रहा है, वो मास नहीं है. ठीक है, वो वेट आपका बढ़. ड्राई मास क्या है? बोन्स. ठीक है, दैट इज द ड्राई मास, कि वो इंक्रीज होगा तो वी कॉल इट अ प्रॉपर्टी ग्रोथ. Reproduction क्या है? Reproduction is a whole separate chapter that we'll be studying as well. The processes that make more of the same type of organism. We have a parent. उस parent के आगे offspring will be produced. ये सारे daughters produce हो रहे हैं from the same parent. Parent से daughters तक जाने के लिए the characteristic is known as reproduction, which are of the same kind and the same offspring. Excretion क्या है? It is the removal from organisms of the waste products of metabolism and the chemical reaction in the cells, including respiration, toxic materials, and substances in excess of requirements. The stomata of plants allows the oxygen produced during photosynthesis and the carbon dioxide produced during respiration to be excreted. ये आपके पास है, आपने कुछ इनटेक किया. द न्यूट्रिशन यू इनटेक्ड. अब उस न्यूट्रिशन के अंदर सारा तो नहीं यूज होगा.
मेरे पास जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, द रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, वील कॉल इट द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनी मेटाबॉलिज्म। जो कि एक्सेस हो गए रिक्वायरमेंट्स में वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। और न्यूट्रिशन क्या है फिर? न्यूट्रिशन इज द सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक विच इज द टेकिंग इन ऑफ मटेरियल्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस नीड फूड, ठीक है, हमें तो रेडीमेड फूड नहीं मिलता, ठीक है, हमें तो कहीं से खरीदना पड़ता है। प्लांट्स क्या है? दे मेक देयर ओन फूड, अपने ही अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, अपना ही खाना बना के, हमें कहीं से लेना पड़ता है। एनिमल्स ईट, बट प्लांट्स यूज लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स की भी तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, दे नीड लाइट एज वेल, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। ओनली देन दे कैन प्रोड्यूस ग्लूकोज, ताकि वही ग्लूकोज पे बाद में रिस्पायर। तो ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली और ऑल इंटरचेंजेबल। अगर आपके पास न्यूट्रिशन होगी तभी आप मूव कर सकते हो, ठीक है, अगर आप ग्रो करोगे तभी रिप्रोडक्शन होगी, अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो तभी एक्सक्रीट होंगे वेस्ट प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटा में जो न्यू ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो न्यूट्रिशन से आएगा वही आपको रेस्पिरेशन में यूज होगा। रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इट वुड हेल्प यू इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से और ग्रोथ होगी, ज्यादा बंदा मूव कर सकता है, मोर रिप्रोडक्शन, और उसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ती जाएगी ड्यू टू ऑल गिवन स्टिमुलसेस। तो मूवमेंट वाज एन एक्शन बाय एन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग अ चेंज ऑफ पोजीशन और अ प्लेस। मैंने जैसे बताया, मूवमेंट को हम लोकोमोशन भी कह सकते हैं, विच इज द एक्ट और पावर ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Respiration, on the other hand, is the chemical reaction that breaks down the nutrient molecules in living cells to release energy. For example, cellular respiration क्या है? आपके जो reactants हैं, reactants में आपके पास आएगा ग्लूकोज, फूड एंड ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, आपके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू एंड प्रोडक्ट थ्री। फर्स्ट प्रोडक्ट वुड बी वाटर, जो कि वाटर वेपर पसीने से, परस्पिरेशन से निकल जाएगा। सेकेंड प्रोडक्ट वुड बी द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, हमने एक्सहेल आउट ही करना है। और ये आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट थ्री, ये हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में अलग से ही पढ़ेंगे डिटेल में। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव अ सेपरेट डिटेल्ड चैप्टर इन योर सिलेबस एज वेल। ये थर्ड प्रोडक्ट जो एनर्जी है, ये यूजफुल है। जैसे आप यहाँ पे देखो, इस प्लांट ने वाटर गेन किया नीचे से, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन आई लीव्स के अंदर, ठीक है। अब शुगर वॉज प्रोड्यूस बाय द लीव्स, ऑक्सीजन यहां से इनटेक आई, प्रोड्यूस क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन वॉज टेकन इन एट नाइट। अब सबको ये लगता है, सब ये बात करते हैं, यार प्लांट्स तो CO2 अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं, रात को डिफरेंट होता है। इन द नाइट दे कॉज रेस्पिरेशन। नाइट में होती है रेस्पिरेशन, डे में होती है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट। रात को धूप तो नहीं है, रात को अगले दिन के लिए तैयारी करने के लिए प्लांट को खुद भी कुछ चाहिए। उधर उल्टा होगा, अब प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए और वो एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। समझ आ गई? जी। गुड। सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड चेंजेस टू द एनवायरनमेंट। मुझे ठंड लगेगी, मैं शिवर करूंगा, ठीक है, मुझे आवाज आएगी, मैं कांपूंगा, मुझे गर्मी लगेगी, मेरी बॉडी परस्पायर करेगी, मैं तेज धूप देखूंगा, मैं अपनी एकदम आंखें बंद करूंगा, बॉडी टैन होने लग जाएगी तेज धूप के अंदर। होम्योस्टेसिस इज अनदर सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम अलग से एक और चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको आप एज अ एट्थ कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो कि इट इज द एट्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज द एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इंटरनल कंडीशंस। जैसे कि बॉडी को ठंड मिल रही है, गर्म करो, बॉडी गर्म हो रही है, ठंडा करो, बॉडी में पानी ज्यादा हो गया, कम करो, बॉडी में पानी कम हो गया, ज्यादा करो। मैं क्या, मैं बैलेंस कर रहा हूँ। बॉडी में ब्लड ग्लूकोज शुगर बहुत ज्यादा होगी, कम करो, बॉडी में शुगर कम हो गई तो ज्यादा करो। बॉडी अपने अंदर इंटरनल कंडीशंस को कैसे मेंटेन रखती है, रिस्पॉन्सेज जनरेट करके, कोऑर्डिनेशन से, थ्रू हार्मोन्स, थ्रू फीडबैक रिस्पॉन्सेज, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, विच इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी। वेरएज ग्रोथ को हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ परमानेंट इंक्रीज इन साइज, अ परमानेंट इंक्रीज इन साइज। एंड द ड्राई मैस, ड्राई मैस से मुराद मेरा क्या था? हड्डियां, बोन्स, रिब्स, ठीक है, ये नहीं कि फैट्स बढ़ा बढ़ा के, फिर तो एक बच्चा भी बहुत फैट हो सकता है, उसको तो हम नहीं कहेंगे। ड्राई मैस है जो बोन है आपके अंदर का स्केलेटन। बाय कैसे? बाय एन इंक्रीज इन सेल नंबर या सेल साइज, या आपके सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, या सेल्स का नंबर वही लेगा लेकिन उनका साइज बस बड़ा हो जाएगा। दिस इज व्हाट कॉजेज ग्रोथ।
Reproduction, on the other hand, was the process that makes more of the same kind of organism for a parent offspring, parent sac for daughter, daughter का further offspring, and it is produced of the same kind. Types होंगी, इसको भी डिटेल में देखेंगे. Reproduction plants, reproduction in humans, meiosis, mitosis, all of this stuff which is included in reproduction chapter as well. Excretion की अगर आपको definition आ चुकी है बहुत दफा, you should know that excretion is the removal from organisms of toxic materials and substances in excess of requirements. जैसे respiration में waste product आ रहा है, यूरिन है, यूरिन क्या होता है, यूरिक एसिड है जो कि एक्सक्रीट होता है, ये भी हम अलग से चैप्टर 13 में आपके पढ़ेंगे. दैट व्हाट इज एक्सक्रीशन नोन एज द रिलीज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. जब बॉडी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपेल कर देती है, वी कॉल इट एक्सक्रीशन. न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द टेकिंग इन ऑफ मटेरियल्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यू कैन सी ओवर है, जैसे सन है, सन से एनर्जी मिली प्रोड्यूसर को. अब ग्रास खा गया ये हर्बीवोर, हर्बीवोर को खा गया ये चूहा, चूहे को खा गया ये सांप, सांप को खा गया ये ईगल, और ये सारे फिर डिकम्पोज करके मशरूम्स भी बना रहे हैं. यही मशरूम फिर डिके होके इसी ग्रास को मदद करे. इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एक डिफरेंट फूड चेन, फूड साइकिल्स भी हम इसी सिलेबस में आपके पढ़ेंगे इन चैप्टर 18, 19, 20 के अंदर. जब इकोसिस्टम पे आएंगे, एनिमल्स पे आएंगे, किंगडम्स पे आएंगे, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस, एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ दैट हैबिटेट हम अलग से जब कवर करेंगे, उधर हमने न्यूट्रिशन को भी देखना है. न्यूट्रिशन तो प्लांट्स की भी है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इट्स देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट. सुबह को उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. वही जो ह्यूमंस एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स इनहेल करते हैं. वही जो ह्यूमंस इनहेल करते हैं, प्लांट्स एक्सहेल करते हैं. न्यूट्रिशन इज इंटर रिलेटेड बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमंस. So living things excrete waste, they grow, they move, reproduce, respire, take on nutrients, and respond to stimuli as well. These are some more definitions जो कि आप अपने Excel IGCSE के सिलेबस में भी ये वाली यूज करेंगे. So these are very much important. ये वाली ये जो फर्स्ट पेज पे लिखी हुई थी, these are more important. Extended syllabus भी होता है, तो बड़ी डेफिनेशन है और थोड़ी डिटेल में प्रॉपर वर्डिंग हो. ठीक है, प्रॉपर वर्डिंग होगी, नॉट यूजिंग एनी बज वर्ड्स, प्रॉपर वर्डिंग, स्टिमुलाई, ड्राई mass, इस तरह की वर्डिंग यूज करें, यू कैन स्कोर फुल इन दी definitions as well. Mrs. H. Gren is a mnemonic used to remember these characteristics. M से बनता है movement, R से reproduction, sensitivity, homeostasis, growth, respiration, excretion and nutrition. होम्योस्टेसिस अगर आप नहीं भी लिखेंगे पेपर, अगर आप सिर्फ मिसेस ग्रेन लिख दोगे, ये वाली प्रॉपर्टीज, ये वाली 7 कैरेक्टरिस्टिक, तब भी एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स. एंड दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर